So let's start today's video, the basics of cash flow analysis. So in today's video we will going to study first the meaning, what is cash inflows and cash outflows. Third, which kind of business activities you have to record in cash flow, that is operating activity, investing activities and financing activities. And the fourth is the pro forma statement showing cash flows from different business activities. So now let's start. मीनिंग ऑफ कैश फ्लो, दिस आर द वेरी सिंपल टर्म्स. आप सबको ये शायद पता ही होगा, लेकिन जस्ट ऑन अ रिविजनरी बेसिस आई एम टेकिंग दिस. सो आई एम गोइंग टू कैश फ्लो is a statement showing the financial position of a firm's cash reserves by recording all the effects of a business transactions of a firm during a particular period of time. Cash flows are the statement showing all the cash inflows and cash outflows of the company. In simple terms, we can say that cash flow statement is a statement which shows all the cash transaction carried in a firm and ultimately their effects on the cash and the bank balance of the firm. As you all know, कैश फ्लो इन टर्म्स एक कैश अकाउंट जैसा है. एक फर्म अपने पूरे फाइनेंशियल ईयर के पीरियड में जितने भी ट्रांजैक्शंस करता है कि जो सीधे कैश रिजर्व्स पर अफेक्ट करते हैं, वो पूरे ट्रांजैक्शंस कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम नोट करेंगे. नाउ व्हाट इज कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज? ऑल दोज एक्टिविटीज थ्रू विच कैश कम्स इन द बिजनेस इज कैश इनफ्लोज. It is very simple. Cash sales, sale of assets, interest received, जिन ट्रांजेक्शन से कैश बिजनेस में आ रही है उसे कैश इनफ्लोज कहेंगे. सिमिलरली वाइस वर्सा, when the cash goes out from the business through any activities, then it is called cash outflows. और जिन एक्टिविटीज़ से कैश आउटफ्लो हो रहा है बिजनेस में उसे हम कहेंगे कैश आउटफ्लोज. दिस आर द वेरी सिंपल टर्म्स. इट मे बी आस्क्ड इन द थियरी और 1 mark MCQ. Now the difference between cash inflows and cash outflows shows the current cash balance of the firm. Now जो cash inflows means जितनी भी कैश हमारे पास आई और उसके सामने जितनी भी कैश हमारे पास गई फर्म में से, तो उनके जो बीच में जो डिफरेंस होगा वो सीधे हमारा करंट कैश या बैंक बैलेंस डिफाइन करेगा. Now types of business activities recorded in cash flow. बिजनेस एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड करने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट को इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने 3 अलग एक्टिविटीज़ में डिवाइड किया है. फर्स्ट, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. सेकंड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़. एंड थर्ड, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़. इफ़ यू वांट टू रिफर दिस एक्टिविटीज़ इन डिटेल, यू कैन गो थ्रू द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 and 9. Now let us see what are these 3 activities. The first is operating activities. Operating activities are the principal revenue producing activities of the entity and other activities that are not investing or financing activities. ये जो डेफिनेशंस मैंने तीनों एक्टिविटीज़ की लिखी है, ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के जो रूल्स हैं उस पर से ही मैंने डायरेक्टली कॉपी करके लिखी है. सो इन एग्जाम्स, इफ़ यू हैव बीन आस्क्ड in theory that what are the operating activities as per the Indian accounting system, you can simply write this. Now operating activities वो है कि जो सिंपल एक फर्म अपने ऑपरेशन के कार्यकाल में करता है, जैसे सेल ऑफ एसेट्स इन्वेस्टमेंट में आएगा. सो नॉन रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से जो भी इनकम होगी उसे हम रेवेन्यू इनकम कहेंगे, जो डे टू डे इनकम. इसका मेजर एग्जांपल सेल्स ही है. नाउ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आर द acquisition and disposal of long-term assets and other investments not included in cash equivalents. Now investing activities उसके नाम से ही पता चल रहा है. इन्वेस्टिंग में हम कुछ भी इन्वेस्ट करेंगे या इन्वेस्टमेंट सेल करेंगे. जैसे प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया तो कैश आउट होगा, प्लांट इन होगा. प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड किया तो कैश इन होगा, एसेट आउट होगा. सो ये सब चीज़ें आएंगी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में. Third is financing activities. Financing activities are activities that result in changes in the size and composition of contributed equity and borrowings of the entity. Now financing activities में totally हम जो capital structure है फर्म का उसे रिफ़र करेंगे, और उसमें भी ज़्यादातर borrowings को कम लेकिन इक्विटी कैपिटल को ज़्यादा. जैसे प्रेफरेंस शेयर हो गया, डिबेंचर्स हो गया, डिबेंचर्स रिडीम्ड हो गया, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो गए जब पैसे हमें शेयर होल्डर्स को वापस देने होंगे. तो दिस आर द एक्टिविटीज़ विल बी कवर्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़.
So now let's see the pro forma for all the three activities. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, इन तीनों एक्टिविटीज़ को हमें रिकॉर्ड करने के लिए अलग अलग टाइप्स के प्रोफोमा या स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे. सो फर्स्ट you have to put the heading of the pro forma for operating activities, statement showing cash flow from operating activities. It will be a 3 columnar, particulars, amount rupees and amount rupees. In first line you have to mention the net profit, the amount of the closing net profit, that is the last year's net profit, and the current year's net profit already been given in the question of balance sheet. आपको हर बार क्लोजिंग बैलेंस में से ही ओपनिंग को माइनस करना है. इफ़ यू माइनस ओपनिंग फ्रॉम क्लोजिंग, योर आंसर विल बी टोटली अनबैलेंस्ड. सो इन फर्स्ट लाइन यू हैव टू पुट नेट प्रॉफिट, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस. देन आफ्टर एडिशन, आइटम्स डेबिटेड टू P&L अकाउंट. हेयर आपको P&L अकाउंट में डेबिट होने वाली हर एक आइटम जो एडजस्टमेंट में दी होगी क्वेश्चन के, वो आपको इधर मेंशन करनी है. इन एडिशन आपको नेट प्रॉफिट में ऐड करना है ये सब. इसका प्रिंसिपल मैं इलस्ट्रेशन जब लूँगा तब मैं बताऊँगा. हियर आई हैव लीव द फाइल लाइन्स फॉर देम. यू विल ऑल्सो सी दैट इक्वेशन कितना लंबा, उस हिसाब से आप लाइन्स छोड़ सकते हैं. देन आफ्टर लेस आइटम्स क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट. ऊपर हमने जो भी आइटम्स डेबिट होने वाली थी उसको ऐड किया था नेट प्रॉफिट में. नाउ उस पर जो भी टोटल आंसर आएगा वो हम उसे आउटर कॉलम में लेंगे. और उसके बाद लेस आइटम्स क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट. जो भी आइटम्स हम P&L अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं, जैसे प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, जैसे जितनी भी आइटम्स है वो आगे हम रिफ़र करेंगे, वो सब आपको लिखनी है इसमें और उसका करना है लेस टोटल अमाउंट में से. नाउ द अमाउंट विच विल बी डिराइव्ड इज़ कॉल्ड द प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल. ये प्रोफॉर्मा आप याद रख लीजिए, यही प्रोफॉर्मा आपको एग्जामिनेशन में लिखना है. The profit which is derived is called the profit before changes in working capital. Now, here the profit before changes in working capital is derived already. Now, उसमें आपको ऐड करना है, here comes some difficult, not difficult but it is some logical point. Here आपको उसमें ऐड करना है increase in current liabilities and decrease in current assets. ये आप पहले समझ लीजिए, फिर आप देख लीजिए, फिर मैं आपको पूरा समझाऊंगा. You have to add all the current liabilities which have been increased and decrease in all the current assets and less. जितनी भी अमाउंट करंट लाइबिलिटीज़ में से डिक्रीज़ हुई है वो आपको सीधे सीधे डिडक्ट करनी है, और करंट एसेट में से जितनी भी अमाउंट्स इंक्रीज़ हुई है वो आपको सीधे सीधे इंक्रीज़ करनी है. सो ये दोनों का इफ़ेक्ट, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई, पूरा ऑपरेटिंग स्टेटमेंट, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का स्टेटमेंट बिगड़ जाएगा और उसका सीधा इफेक्ट अपने फाइनल आंसर पे होगा. सो आई रिपीट दैट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आया, उसके बाद इंक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटीज़ की जो अमाउंट है और डिक्रीज़ इन करंट एसेट्स की जो अमाउंट है, जो आपको पिछले ईयर के फिगर्स से मैच करने पर मिल जाएगी, उसको आपको ऐड करना है. और डिक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटीज़ एंड इंक्रीज़ इन करंट एसेट्स की जो फिगर्स है उसको आपको लेस करना है या माइनस करना है. किस में से? तो प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में से. नाउ the profit which you will get after this is operating profit after changing in working capital. इसमें से आपको less tax paid current year का, provision for tax नहीं, less tax paid for the current year वो डिडक्ट करना है, जो कि आपको दिया होगा या एडजस्टमेंट में होगा. उसके करने के बाद ही आपको फाइनल आंसर मिलेगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. सो बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में सबसे जो क्या क्रिटिकल पार्ट है वो यही है कि हाउ वी कैन डील विद द चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल. इसके प्रिंसिपल्स मैं आपको लास्ट स्लाइड में इसी वीडियो के दिखाऊंगा. सो सी टू इट दैट यू विल अंडरस्टैंड. और तब तक यू कैन गेट द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर ऐड इंक्रीज वाला जो भी पॉइंट है उसका, एंड ऑल्सो द स्टेटमेंट विच आई विल बी शोइंग इन नेक्स्ट स्लाइड. सो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का जो प्रोफॉर्मा है वो वेरी सिंपल है. इट इज़ विल बी ए 3 कॉलमनर, और जिनसे कैश आई आपको वो अमाउंट्स प्लस में डालनी है, जिनसे कैश गई आपको वो अमाउंट्स माइनस में डालनी है. सो द टोटल विल बी आइदर इन माइनस और आइदर इन प्लस. थर्ड इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़. इसका भी प्रोफॉर्मा वैसे वेरी सिंपल है. जैसे ऊपर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जो प्लस माइनस का फॉर्मूला हमने लिया था, जो जिससे प्लस इंक्रीज़ हुआ कैश,
उसे प्लस में फिगर्स लिखनी है, जिससे कैश आउटफ्लो हुआ उसे माइनस में लिखना है। नाउ वन ऑफ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आपको ये तीनों एक्टिविटीज़ का टोटल करना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। वी विल गिव द नेम्स A, B एंड C। उसका जो टोटल अमाउंट निकलेगा उसे कहेंगे हम नेट कैश फ्लो। अभी उस नेट कैश फ्लो में से हमें ओपनिंग कैश बैलेंस ऐड करना है, जो मे बी नॉट मे बी बट दिया ही होगा क्वेश्चंस पे, क्योंकि उतने हार्ड सम्स होते नहीं हैं। स्टिल अगर ना दिया तो वो एडजस्टमेंट में हम देख लेंगे कैसे फाइंड आउट करना है। लेकिन अगर ओपनिंग कैश बैलेंस दिया है, यू हैव टू जस्ट सिंपली पुट दैट कैश बैलेंस इन द नेट कैश फ्लो एंड यू विल टैली दैट। अगर आपका पूरा ये मेथड से किया हुआ कैश फ्लो स्टेटमेंट सही है तो जो क्लोजिंग कैश बैलेंस आपको दिया है बैलेंस शीट के क्वेश्चन में, वो और आपका जो क्लोजिंग कैश बैलेंस आएगा वो दोनों मैच हो जाएगा। थस इट डिफाइंस दैट योर टोटल सम इज करेक्ट एंड यू विल गेट फुल मार्क्स आउट ऑफ दैट। नाउ here we have shown the statements, how to make the operating activity statement, how financing and how investing. Now और एक बार मैं वो प्रिंसिपल रिपीट करता हूँ, जब प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज वाला जो मैंने पीछे रखा है, प्लीज़ पे सम अटेंशन हियर गाइस। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज आपका पूरा स्टेटमेंट अगर राइट हो और यहाँ गलती हुई तो योर स्टेटमेंट विल बी फुल्ली रॉन्ग। नाउ आपको ऐड कौन सी चीज़ें करनी है जो प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस है उसमें, तो इंक्रीज़ इन लायबिलिटीज़ और डिक्रीज़ इन करंट लायबिलिटीज़, ये दो जो चीज़ें होंगी आपको इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ करनी है। अभी कैसे, तो अगर करंट लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ हुई, सपोज़ क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स 80,000 थे तो वो 1 लाख हुए, इसका मतलब आपने जो गुड्स परचेज़ किया था वो कैश में नहीं किया, मतलब उतनी कैश आपके पास बच गई, सो दैट विल बी ट्रीटेड एज इंक्रीज इन कैश। थस जो प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस है उसमें ये इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़ प्लस में जाएगा। ऐसे ही डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़, सपोज क्रेडिटर्स का एग्जांपल लेते हैं, क्रेडिटर्स आपके थे 1 लाख और आपने क्लोजिंग क्रेडिटर्स आपके हैं 80,000। इट मीन्स दैट आपने जो क्रेडिटर्स थे आपने उनको पैसे दे के क्रेडिटर्स को ओमिट किया, जो डिक्रीज हुए क्रेडिटर्स, सीधा सा मतलब है योर कैश डिक्रीजेस, तो वो आएगा प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में माइनस में 20,000। नाउ एज इन करंट एसेट्स इट इज ऑपोजिट, इंक्रीज इन करंट एसेट्स मीन्स डिक्रीज इन कैश। इट इज़ वेरी सिंपल इफ यू गेट लॉजिक। इंक्रीज इन करंट एसेट्स, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ स्टॉक। अगर आपके पास स्टॉक 1 लाख रुपीज़ का है और वो साल के एंड में बढ़ के 1,50,000 का हो रहा है, सो व्हाट इट मीन्स, इट बेसिकली मीन्स दैट आपने परचेज किया होगा। देर आर मैनी एडजस्टमेंट देयर, बट ऑन अ वेरी फर्स्ट नोट वी विल व्हाट सी दैट द स्टॉक में बी परचेज। और सपोज प्लांट एंड मशीनरी देखो तो वो क्या होगा, परचेज किया होगा। हियर आई विल रिटर्न द करंट एसेट्स, बट इन एक्चुअली ये एडजस्टमेंट जो है फिक्स एसेट का वो इन्वेस्टमेंट में आएगा, सो बी वेरी केयरफुल। करंट एसेट्स में जैसे मेन स्टॉक का एग्जांपल आपको एग्ज़ाम में आएगा, सो you don't have to worry much. Why I am explaining this is because that you will get very clear about this concept. Now increase in asset, स्टॉक आपका 1 लाख से बढ़ के 1,50,000 हुआ, इट मीन्स दैट आपने परचेज किया होगा, उसकी एडजस्टमेंट टोटल ही होगा, और यू हैव टू अज्यूम दैट आपने कैश से ही परचेज किया है, क्रेडिट पे नहीं, क्योंकि क्रेडिट पे परचेज किया होता तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कभी रिकॉर्ड ही नहीं होता। तो सीधी सी बात, आपने कैश स्टॉक परचेज किया, आपकी कैश डिक्रीज़ हुई, तो आपको प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में ये इंक्रीज इन करंट एसेट की जो फिगर है उसे माइनस में लिखनी है। गॉट इट? नेक्स्ट, डिक्रीज इन करंट एसेट्स का पूरा रिवर्स फॉर्मूला होगा। नाउ डिक्रीज इन करंट एसेट्स, वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ स्टॉक ऑल्सो। ऊपर करंट लायबिलिटीज़ में हम लोग क्रेडिटर्स के ले सकते हैं, बिल्स पेबल्स के ले सकते हैं। करंट एसेट्स पर भी हम लोग डेटर्स के ले सकते हैं, बिल्स रिसीबल्स के ले सकते हैं, स्टॉक के ले सकते हैं। नाउ लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ डेटर्स। जो डेटर्स अपने करंट एसेट्स है 1 लाख, वो डिक्रीज़ होके सपोज 80,000 के हुए। इसका मतलब जिनसे हमें पैसा लेना था, जिन डेटर्स से 1 लाख डेटर्स से, उनमें से 20,000 ने हमें कैश दे दिया, बाकी रहे 80,000 वाले डेटर्स। तो 20,000 रुपये हमारे पास आए। ऑब्वियसली द कैश इंक्रीजेस,
So it will goes in the profit before working capital change as in plus figures, right? All right. So ये चार जो in a way these are the adjustments, these are the basic adjustments जो आपको हर एक sum में होगी. But as we move on to the sums, you will get very used. So if you have any doubt in especially in these 4 adjustments, just let me know in the community section or through my comments also, or you can also email me, that is saijautkars9602@gmail.com. all the figures are small. I repeat, saijautkars saijautkars 9602@gmail.com. एंड इन नेक्स्ट वीडियोज़, अब मेरी जो 2 वीडियोज़ होगी वो फर्स्ट होगी इकोनॉमिक्स पे, जिसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पूरा टॉपिक्स आ जाएगा, यूनिटरी इलास्टिसिटी, इनकम इन इलास्टिक डिमांड, और वो पूरा ही जो है वो आएगा. दूसरा टॉपिक जो होगा मेरा वो इसके प्रैक्टिकल सम्स होंगे, और उसमें आई पर्सनली सजेस्ट दैट यू हैव टू अटेंड दैट, बिकॉज अगर आपने सिर्फ वो अटेंड किया तो भी आपके जो भी प्रिंसिपल्स हैं बेसिक कैश फ्लोज के, वो आपके क्लियर हो जाएंगे. So all right guys, I hope that you understand what I tried to convey the topic to you. Or if you have any doubt, as I said, you can direct me in my email, और आप मुझे comment section में बता सकते हैं community के. And that's all for today. See you in the next 2 videos of economics and the practical examples of cash flow analysis. Till then, stay safe, stay happy. Bye bye.